ये वो था। मैं नहीं आई क्या? कर ले। कौन से बच्चे आई है? क्या हुआ है? म्यूट बहन जिस दिन उस दिन फुल करो। करना है। 30 रोज। आज क्यों नहीं आ रही है इसमें? Aku sih nunggu ya udah. Oh my gosh. अगर वो कैमरा वो काम कर दो।
हो गया, जाओगे त्रिशा? कहाँ जाना? अरे धूप होते यार, वो तो अभी वहीं पे थी, अभी तो वो लविष्का। Good evening, everyone. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I said Yes, ma'am. good evening. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. How many children these days in the class? Yes, Eva, how many children are there in your class these days? 20. Class 26 children. okay, last time also you had 26. You are No, including ma'am. 30 to 40. 38 to 41. thank you, No, Anika. ma'am, but in this class, 26 students are present. I'm not asking about current. I'm asking about otherwise. Otherwise, how many children are there in your class? How many total children? 30 to 40. Okay, beta. Fine. So, how are you all doing? Today is Monday. Lot of studies. Okay. Chal. Actually, Switch on your camera, please, so that I can have a look at everyone. You mute yourself when you are talking.
You're supposed to mute yourself. Yes. How many children there? Give me a smile, everyone. Give me a smile. Let me see. Anay, Arush, Kriti, switch on your camera, please. Sanvi, Satyam, switch on your camera. Yes. Kriti, don't eat your nails. Shashwat, Sanvi. Okay. Everyone is here. Are we ready? Yes, ma'am. ये आवाज नहीं आ रही Yes, क्या? तो ma'am. yes और Yes, कौन ma'am. बोलेगा? Ma'am. Yes, Yes, कौन ma'am. बोलेगा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Class, Yes, class ma'am. start. Okay, got it. Maria. The class starts. What do you say? What do you say when the class starts? Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Good Afternoon, afternoon ma'am. है या evening है अभी? Is it Ma'am, good evening? evening. No, Evening, ma'am. Good evening. it is afternoon because the sun is still showing. जब sunset होता है तब evening होती है. अभी afternoon है. 5 o'clock के बाद जब sunset हो जाएगा तब आपकी evening होगी. ठीक है? अभी तो धूप सिर के ऊपर है ना? So it is evening time. Okay, anyways, चलो. Today we will be studying about microbial diseases. Okay, एक बार मुझे thumbs up दिखाओ. मेरा language, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है? Topic समझ आ जाता है? Show me a thumbs up. Everyone is okay with the language? Garima, I can't see your thumb. Everyone? Yes. Okay, Kunal, how are you, beta? Good. Give me a smile, Kunal. You are the senior boy here. Okay? Okay, everyone, fine. All these children who have not switched on their camera, they are absent in my class. I am not going to take anyone's doubt. अगर आपको ये लगता है कि आप शांति से ऑफ करके बैठ जाओगे तो मेरी क्लास में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है? शाश्वत, सत्यम, अनिरुद्ध, अगर क्लास में पीछे से ऑफ हुआ कैमरा बेटा तो मैं अभी आपके पेरेंट्स को बुलाऊंगी. समझ आया? I am not going to spare you. I am not a very this thing. I am a strict teacher. Okay. Today we will be talking about microbial diseases. अपने hands देखो सारे बच्चे. Look at your hands. Look at your hands. Can you see any germs? Germs दिख रहे हैं? अंदर देखो इधर जहां से खाना खाते हो. Germs दिख रहे हैं किसी को? दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? अच्छा. अब ये अगर यही हैंड्स आपके माइक्रोस्कोप के नीचे चले जाएं तो आपको क्या जर्म्स दिखेंगे जैसे डिटॉल के एड में दिखाते हैं? दिखेंगे जर्म्स? यस और नो? थम्स अप, थम्स डाउन. ओके, सो इसका मतलब हाथों में जर्म्स हैं. आधे देर, आधे देर. ओके, कहाँ से आते हैं ये जर्म्स? हम तो रेडी होके नहा धोकर अच्छे से हैंड वॉश करके बैठते हैं. फिर जर्म्स किधर से आते हैं तौशिक? फ्रॉम वेयर डू दे कम इन आवर हैंड? मैम जब भी हम कोई भी जगह कोई भी चीज को छूते हैं तो मैम उसमें पहले से जर्म्स रहते हैं और मैम फिर वो हमारे हाथ में लग जाते हैं. हम सर्फेसेस में, अगर आप तौशिक खाना खा रहे तो खाने में तो जर्म्स नहीं होते, फिर हाथ में कहाँ से आ जाते हैं जर्म्स? मैम क्योंकि मैम जब हम खाना खाते हैं तब मैम हम अपने हाथ धुलते हैं. तो इसका मतलब तौशिक ने खाना खाने से पहले जो भी सरफेस टच करी है उससे जर्म्स आए हैं तौशिक के हाथ में, है ना? यस मैम. ओके बेटा, सो दैट इज व्हाई योर ममा सेज वॉश योर हैंड्स, क्योंकि हमें पता नहीं चलता और हम कितनी सारी चीजें टच कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं भी अभी हैंड वॉश करके आई हैव सैट बट आई हैव टच्ड माई मोबाइल. मोबाइल हर जगह हमारे साथ जाता है ना? आई हैव टच्ड माई पेंसिल, माई बुक्स, my table, everything. So the surfaces have the germs which come in their body, which come in our body. Today we will be studying about diseases. वो germs जो हमें बीमार करते हैं. Okay? So बीमार वही germs करेंगे जो bad होंगे, है ना? आप सबकी क्लास में good boys, bad boys होते हैं ना? होते हैं ना? गर्ल्स भी गुड बैड गर्ल्स होती हैं. बट जैसे गर्ल्स और बॉयज मतलब आई मीन आपके क्लासमेट्स गुड और बैड हो सकते हैं, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी गुड और बैड दोनों होते हैं. ओके, सिर्फ बैड नहीं होते.
हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर. कैन यू सी इट ऑन योर बॉडी? यू नो दे आर ऑल ओवर योर बॉडी. पता है अभी अगर मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगाऊं तो मुझे यहाँ पर भी दिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे. लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे लिए हार्मफुल नहीं है. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमार कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, है ना. लेकिन गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? क्या करते हैं गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्या कर सकते हैं? गैस करके बताओ. आपकी बॉडी के अंदर तो रहते हैं. यस, लालू लालूथफेला. बेटा कुछ इजी नेम नहीं है आपका? हाँ, ये तो बड़ा डिफिकल्ट नेम है. क्या वेयर हैव यू गॉन? यस, हाँ पुत्र बताओ. The organisms help our body. Yes, they help our body in what? Defending us or defending us primarily. Okay, बेटा absolutely right. They defend us. But किससे बचाते हैं आप? What is the danger inside our body? Very good. Larutfela, can there be some easy name for me? Can I call you in some easy name? This is a tongue twister for me. Very sweet name, but okay. Very good. I'm so proud of you, beta. Now tell me, हमारी body को problem किससे है? What are we scared of that the body is microorganisms are protecting us? Yes, I saw someone raise hand. Toshik, wait, beta, you've answered. Anyone else? Twin brothers, Siddhant, Sahil, pencil side में रखो. No distraction. जब लिखना होगा तब उठाना. Garima, what is the danger inside our body with which microorganisms are protecting us? Yes, unmute yourself quickly. Hurry up, hurry up, hurry up. हमारा बॉडी है, हमको मालूम है कुछ तो चल रहा है बॉडी के अंदर, तो हमको ये क्यों नहीं मालूम कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? प्रथम एंड पृथ्वी, 2 ब्रेन्स. देखो 2 ब्रेन्स हैं आपके पास, जल्दी से यूज करो. साहिल, कुछ आया दिमाग में? आया? यस, बताओ फटाफट बताओ. रेज योर हैंड्स एंड टेल मी. Ma'am, they protect us from dangerous virus. Yes, absolutely right. They protect us from the dangerous viruses. Viruses, microorganism, bad micro. Very good. Sahil देखो, पेंसिल साइड में रखा, दिमाग चलने लगा है ना. अभी दिमाग पेंसिल में लगा हुआ था. शाबाश. I'm so proud of you. Very good. So today, because we are studying about germs, जो microorganism good और bad दोनों होते हैं, right? Point number 1. पॉइंट नंबर 2, जो गुड ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें बचा रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं. साहिल ने बोला बैड वायरसेस विच आर ट्राइंग टू अटैक आवर बॉडी, राइट? उससे बचा रहे हैं, जर्म से बचा रहे हैं. हमारे जो अंदर देयर इज अ गट बैक्टीरिया बेटा हमारे डाइजेशन में, जो हमें हेल्प करता है हमारा इम्यूनिटी बिल्डअप करने में. ओके, इफ इट इज हेल्दी, अगर आप अच्छी हेल्दी चीजें खाते हैं, सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम is protected and it protects and builds up our contributes to our immune system. ठीक है? Microbial diseases are like this in your hand, the germs which stick to your body and try to attack you. वो आपकी बॉडी में घुसते हैं और आपको बीमार करते हैं. ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं माइक्रोबियल डिजीजेस होते क्या है. माइक्रोबियल डिजीजेस आर नोन एज एन इन्फेक्शियस डिजीज. they cause illness by invasion. Invasion का मतलब होता है जबरदस्ती बॉडी के अंदर घुसना, है ना. Infiltrators invaded in our country. जो मुगल्स और ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने इन्वेड किया था हमारी कंट्री में, हमने जबरदस्ती घुसे थे, है ना. वैसे ही ये जो जर्म्स होते हैं ये हमारी बॉडी में जबरदस्ती घुस जाते हैं, हमारा मन नहीं होता फिर भी, है ना. और फिर क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाके सीधा दे मल्टीप्लाई, खूब सारा मल्टीप्लिकेशन, और फिर उनकी पार्टी शुरू. और हमें क्या लगता है, पहले हमारी नोज रन करती है, फिर हमें बुखार हो जाता है ना. धीरे धीरे दे ओवर पावर आवर बॉडी एंड दे मेक अस इल. ओके, दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स एंड पैरासाइट्स विद इन आवर बॉडी. नाउ जो जर्म्स होते हैं बेटा, उनको जो लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज में पैथोजेंस बोला जाता है. सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो पैथोजेंस ऐसे लिखो, पैथोजेंस को अंडरलाइन करके ऊपर लिखो जर्म्स, जिससे आपको याद रहे जितनी बार ये वर्ड आएगा
उसका मतलब है जर्म्स। ये क्या करते हैं, आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, अभी सोचो फॉर एग्जाम्पल दिव्यांश के मुंह पे किसी दोस्त ने छींक दिया, है ना, नो हैंडकरचिफ यूजिंग, नो यूजिंग हैंड, सीधा दिव्यांश से बात करते करते उसके मुंह के ऊपर छींक दिया, तो दिव्यांश क्या होगा, फिर गला खराब होगा मैम फिर मुझे मैम क्या? से छींका हुआ तो मैम उसके बॉडी के जर्म्स मैम हमारे बॉडी में लग जाएंगे और मैम हमें मैम कोई डिजीज हो सकता है। यस, फिर दिव्यांश सांस लेना तो बंद कर नहीं सकता, तो क्या करेगा, इवन इफ ही गोज अवे, और अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो शायद वो 1-2 दिन में थोड़ी सी रनिंग नोज हो, गला खराब हो और ठीक हो जाए। लेकिन अगर इम्यूनिटी खराब है तो क्या होगा, जर्म्स बॉडी में इन्वेड कर जाएंगे तो मैम और क्या, हाँ फिर क्या होगा, फिर क्या होगा मैम दिव्यांश? मैम आपका network is bad or what? Okay, so what will happen, दिव्यांश will have to take छुट्टी दूसरे दिन। नेक्स्ट डे दिव्यांशु से मम्मा मुझे बुखार जैसा लग रहा है, मेरे को स्कूल नहीं जाना, है ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं एंड दे मेक अस अनहेल्दी। ओके, दे मेक अस सिक। व्हाट आर द प्रिवेंशंस आर, जो आपकी मम्मा हमेशा बोलती है, पर्सनल हाइजीन, रोज सुबह नहा के जाते हैं ना सारे स्कूल, या फिर वापस आके फटाफट नहाते हैं, है ना, यू टेक अ बाथ आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम डिटॉल। इंश्योरिंग क्लीन सराउंडिंग्स, अपने घर के आसपास, अपने आपके क्लासरूम्स में भी इंस्पेक्शंस होते होंगे कि आपका सब कुछ क्लीन है, क्लासरूम क्लीन है या नहीं, राइट, दैट इज बिकॉज यू हैव टू मेंटेन अ क्लीन सराउंडिंग। प्रैक्टिसिंग सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड, गंदे हाथों से खाना नहीं खाना, अगर किसी के हाथ गंदे हैं तो उसके हाथ से खाना नहीं खाना, राइट। प्रैक्टिसिंग सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड। वैक्सीनेशन, आपको पता है आप सबका एक वैक्सीनेशन कार्ड है, डू यू नो दैट, सिंस चाइल्डहुड व्हेन यू वर 5 days old, तब से मम्मा आपको वैक्सीन लगवा रही है सो दैट यू कैन स्टे हेल्दी एंड नो वायरसेस डिस्टर्ब योर ग्रोथ, है ना। तो आज का होमवर्क है कि आप सब वो वैक्सीनेशन कार्ड्स देखोगे और देखोगे आपको कौन कौन सी वैक्सीन लगी है। ओके, डन, मम्मा से मांगना, मम्मा के पास होगा। सीकिंग मेडिकल अटेंशन फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर जुकाम है, बुखार है, तो प्लीज डॉक्टर के पास जाओ, अपने खुद के डॉक्टर मत बनो कि पेट में दर्द है, कुछ उल्टी सीधी दवाई खा ली और फिर बैंड बज गया और फिर हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डोंट डू दैट, है ना। इंडिया में वैसे हम यही काम करते हैं, बिना डॉक्टर की दवाई खा लेते हैं। ओके, व्हाट आर माइक्रोब्स, organisms which are not visible from the naked eyes, जो हमें ऐसे आंखों से नहीं दिख सकता, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखेंगे। अभी हाथ में दिख रहा है कुछ, अभी यही वाले हाथ रखोगे तो डर जाओगे कि माइक्रोस्कोप के नीचे बाप रे इतने बड़े बड़े कीड़े मेरे हाथ पे, है ना, और यही मैं तो बिना हाथ धोए खाना खाने वाला था, ये तो चला जाता मेरे पेट में, है ना, लाइक दैट। नाउ microbes are minute and cannot be seen from naked eyes. They are bacteria, good and bad both. Virus, good and bad both. Fungi, good and bad both. Algae, good and bad. Protozoa, good and bad. Good हमें healthy रखता है and bad microorganisms make us sick. Illness and ailment caused in animals and human beings by the introduction of one of the pathogenic microbes. Pathogen का मतलब germs. वो microbes जो germ infected हैं, वो हमें वो bad bacteria, bad virus, bad fungi, bad protozoa, ये हमें बीमार कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गुड तो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गुड तो हम खाते भी हैं कितनी बारी। ओके, नाउ माइक्रोबियल डिजीजेस आर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। चलो अभी मुझे एक एग्जाम्पल बता दो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का। ये वर्ड सुना है ना आपने इंग्लिश में, हैव यू हर्ड दिस वर्ड, सुना है सबने, थम्स अप थम्स डाउन। Okay, I don't want statues in the class. Very good, Raghav. You are participating, but I hope you are not playing with your emoji. हाँ, खेलना नहीं emojis के साथ। शाबाश। Nikom, we have 2 twins here. Mayank, hand raise करो सारे जल्दी। Yes, Raghav, चलो आपका thumbs up बड़ा cute था, बताओ बेटा। Yes. मैम नॉन कम्युनिकेबल जो हम लोग, जैसे हम लोग को फीवर हो गया तो हम लोग अपना फीवर किसी और को पास नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई बैक्टीरिया अपने आप अपन लोग के अंदर जनरेट हो जाता है। Okay. और communicable?
कम्युनिकेबल जैसे हम लोग के पास हम लोग को कोल्ड हो गया, हम लोग ने किसी के ऊपर छींक दिया, उससे हम लोग जैसे उसको हम लोग ने बीमार कर दिया। Okay, fine, राघव, the examples were good. Communicable का एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक था. नॉन कम्युनिकेबल में बेटा फीवर क्या होता है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है. हमारी बॉडी में कोई भी गड़बड़ है, अगर आपकी नोज पे भी पेन हो रहा है ना, तो आपको लगेगा मुझे फीवर आ रहा है. होता है ना ऐसे? अगर अंगूठे में भी दर्द है तो फीवर आ रहा है. तो फीवर इज जस्ट अ मैकेनिज्म. उसका कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल से ज्यादा लेना देना है नहीं, है ना. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कुछ और होते हैं. राघव, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी यू पार्टिसिपेटेड. अनिका वाज रेजिंग हैंड. यस अनिका, यस बेटा. मैम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में आ सकता है डायबिटीज, और कम्युनिकेबल में आ सकता है वायरल फीवर। एब्सोल्युटली राइट डार्लिंग, एब्सोल्युटली राइट, वेरी. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होते हैं अगर प्रथम और पृथ्वी में से प्रथम रोज पिज्जा खा रहा है और पृथ्वी रोज हेल्दी फूड खा रहा है, तो क्या होगा, प्रथम में शायद कोई अगर विटामिन ए या विटामिन बी कम हो जाए और रात में उसको हल्का कम दिख रहा है, तो क्या वो पृथ्वी को ट्रांसफर होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो प्रथम की बॉडी की कंडीशन है ना. उसका इम्यूनिटी हेल्दी फूड नहीं खाया इसलिए कम हुई है, तो वो पृथ्वी को ट्रांसफर नहीं हो सकता. दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे एंसेस्टर जो हम हेरिडिटी हम लेकर आए हैं उसकी वजह से हमें हो सकता है. Okay, these are chronic diseases. Non-communicable are chronic diseases. Group of long-term conditions की वजह से होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक दिन पिज्जा खा के हम बीमार पड़ सकते हैं, नहीं. ये जो जंक फूड होता है बेटा, ये स्लो पॉइजन की तरह होता है, हमारी इम्यूनिटी को लो करता है. जैसे आप मैगी खाते हो, मैगी में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, चिल्ड्रन बिलो 3 years कैनॉट ईट. बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, इसे कोई पढ़े ना उसको. जो लोग मैगी खाते हैं वो भी एक स्लो पॉइजन है, लेकिन हमको उसका एडिक्शन भी हो चुका है, तो हम मैगी, हमको मालूम है जहर है, बहुत लंबे टाइम बाद असर करेगा, तो खा लेते हैं, आज क्या फर्क पड़ रहा है ना. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारे लाइफस्टाइल, हमारे अदरवाइज जो हेरिडिटरी इश्यूज हैं उनकी वजह से, बॉडी कंडीशनिंग की वजह से हो जाते हैं. कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं जो हम एक दूसरे को फैलाते हैं. These are the non-communicable diseases, some of it. High blood pressure, बीपी हाई हो जाता है मम्मी का जब रिजल्ट आता है या पीटीएम आती है तब. हाँ, मम्मा पीटीएम में जाती है, मैम कंप्लेन करती है, मम्मी का बीपी हाई हो जाता है ना. तो ब्लड प्रेशर इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. जब ब्लड बहुत तेजी से पंप कर रहा होता है हार्ट को, तो अगर हम तेज तेज भागते हैं तो कभी कभी थक के गिर जाते हैं ना. तो ब्लड प्रेशर में भी यही होता है, हार्ट का हाल. हार्ट क्या होता है, इसीलिए फिर जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट कोलैप्स हो जाता है. दैट इज हार्ट फेल, हार्ट अटैक. ओके. फिजिकल इनएक्टिविटी, जो आदमी पोटैटो के सैक की तरह, मतलब आलू की बोरी की तरह पड़े रहते हैं, काम नहीं करते, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गॉड ने हमें चलने फिरने के लिए बनाया है. ओके, सो दिस इज नॉन कम्युनिकेबल. बॉडी, दिस इज योर लाइफस्टाइल. ओबेसिटी मतलब मोटापा. आपने कुछ लोग देखा होगा जो बहुत ज्यादा एकदम से मोटे हो जाते हैं, दैट इज सम इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. रेस्ड कोलेस्ट्रॉल, जो रोज आलू पूड़ी कचौड़ी पराठे what halwa and your samosa, all these things which are very tasty but they are not good for health, so you cannot have it every day, usse cholesterol बढ़ जाता है, right? So this is all lifestyle. See, if you see lifestyle और कुछ genes, जो आप के genes में अगर कोई disorder है, कुछ है, तो उसकी वजह से. Decrease in vegetables and fruits, कम fruits खाओगे तो भी problem हो सकती है. vegetables and fruits, कितने बच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज खाते हैं? रेज योर हैंड्स, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू. वेरी गुड यश, वेरी गुड मान्या. ओके, सारे खाते हैं. अभी मम्मी से पता चलेगा सच बोल रहे हैं कि नहीं, है ना. गिगन, ओके. तेजस, वेरी गुड बेटा. रेज्ड ब्लड ग्लूकोज, कितने बच्चे बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, जिनको बहुत मीठा अच्छा लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक लॉट्स ऑफ स्वीट्स, कि अगर रसगुल्ला आएगा तो पूरा पैकेट में ही खाऊंगा, ऐसे वाला, है ना. बहुत सारे बच्चे हैं. ठीक है निकुम, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे आप बड़े होगे तो आपको मीठा कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बहुत बड़े होके भी मीठा खाते हैं उनको रेज्ड ब्लड ग्लूकोज हो जाता है. ग्लूकोज लेवल शूट अप कर जाता है, बॉडी हैंडल नहीं कर पाती, हमारे पैनक्रियास उसको
हैंडल नहीं कर पाते, अल्कोहल दारू पीना, टोबैको यूज, व्हाट इज दैट, गुटखा, dirty gutka. Okay, all this. These are all your lifestyle diseases and things. चलो, now let us come to communicable diseases. सबको एक बार जुकाम तो हुआ होगा पक्का, है ना? सबने नाक पोंछी अपनी? Running nose when your nose is running. कितने बच्चों की रनिंग नोज है ना? Everyone knows. Okay. So how do microorganisms attack your body? अब आपकी बॉडी में उन्होंने घुसना है, ठीक है? How do they enter your body? Now let me take an example. For example, if Siddharth is riding his cycle, ठीक है? सिद्धार्थ अपनी साइकिल पे जा रहा है और सडनली रोड पे गिर गया, तेज तेज भाग रहा था, पीछे से एक डॉगी आया और डर की वजह से सिद्धार्थ गिर गया। क्या हुआ? रोड के ऊपर गिरने से उसको एक स्क्रैच लगा, और इधर स्क्रैच लगता है, थोड़ा सा ब्लड आता है ना बाहर, आते है, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा, इसका मतलब ये नहीं कि बस एक यही है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। नाउ सिद्धार्थ का थोड़ा सा ब्लड निकला, इधर से छिल गया, और कहाँ गिरा था वो? रोड के ऊपर। तो सिद्धार्थ मुझे बताओ, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर उसको कैसे ट्रीट करता है? स्टेप 1 क्या करता है डॉक्टर? सबसे पहले मैम दवाई लगाता है। दवाई लगाने से पहले कुछ करता है सिद्धार्थ? मैम क्या बोलते हैं, उसे साफ करता है। शाबाश। क्या एक बार करता है या 2 बार करता है? मैम 1-2 बार करता है। ये 1-2 बार करता है, वेरी गुड। उसके बाद क्या करता है साफ करने के बाद? मैम उसके बाद दवाई लगाता है। वेरी नाइस। फिर पूछता है कि रोड पे गिरे थे या घर में गिरे थे? हाँ। फिर उसके हिसाब से आपको इंजेक्शन भी लगता है अगर आप रोड पे गिरे हो तो, यस मैम। है ना? क्यों लगता है इंजेक्शन, पता है? नहीं। नहीं? अच्छा, अभी बताती हूँ मैं क्यों लगता है। कौन बताएगा? राघव, वेट बेटा, यू हैव आंसर्ड। Roval. Yes, Roval has not answered. Yes, Roval. Where have you gone? I'm very happy with the children who are raising hands. I'm so proud of all of you. मैं सबको इकट्ठे अनम्यूट नहीं कर सकती, but I'm very proud of all of you who are participating in the class. Roval has vanished. Someone else? Manya, are you raising hand? I see a emoji. Yeah. Any idea? Unmute yourself, dear. When the notification comes, you are supposed to unmute yourself. I know children who don't know the answer, they don't unmute. I know that. आपको लगता है कि मैम सोचेगी नेटवर्क नहीं आ रहा है, अनम्यूट करो जब नोटिफिकेशन आ रहा है तो। Yes, now tell me, क्यों लगाता है इंजेक्शन डॉक्टर? चोट तो आती है। हाँ, Ma'am, sometimes we fall on some iron or paint, then we got tetanus injections. टिटनेस, वेरी गुड मान्या, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। टिटनेस इंजेक्शन लगता है बिकॉज अगर आप किसी इन्फेक्टेड प्लेस पे हैं तो आपके ब्लड में पूरा सेप्टिक फैल सकता है और ऑर्गन फेलियर हो सकता है। दैट्स अ मैसिव थिंग, बॉडी क्रैशेस। ओके, सो सारे प्रिकॉशंस हटा किए जाते हैं पहले आपके। व्हाई डज दिस हैपन? देखो यहाँ पर अब हम माइक्रो, ये तो आपका साइड था, अब हम ये देखते हैं डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर ने ऐसा इसलिए किया बिकॉज माइक्रोबियल डिजीजेस, जो जर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे रीच द टारगेट साइट ऑफ योर बॉडी, है ना? सिद्धार्थ के यहाँ पे स्क्रैच आया तो टारगेट साइट पे जैसे ब्लड निकला क्या हुआ, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रोड के ऊपर थे दे केम हियर, सारे नहीं जितने भी एक्सपोज हुआ, ठीक है, दे केम हियर कि ओके थोड़ा सा कट लगा, अब हम आराम से ब्लड के रास्ते इसकी बॉडी में घुस जाएंगे। डॉक्टर ने क्या किया, उसको जल्दी से क्लीन किया। व्हाई? बिकॉज व्हाट डू दे डू, मल्टीप्लाई रैपिडली। जैसे ही उन्हें एक लिविंग सेल मिलता है वो फटाफट मल्टीप्लाई करने लगते हैं कि फैल जाओ सारे में, जिससे हम इसकी बॉडी के अंदर घुस जाए। फिर क्या होता है, अटैक द टारगेट साइट बाय इन्फेक्शन। सडनली उसके ऊपर इतना ऐसे दर्द होने लगता है ना, कुछ कुछ होता है, बिकॉज दे आर अटैचिंग टू द टारगेट साइट। इसीलिए डॉक्टर उसको 2 बार 3 बार साफ करता है। फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के भी साफ करता है, डिटॉल से भी साफ करता है कि कोई चिपके नहीं रहे वहां पे, सब कुछ निकल जाए। अवॉइड एंड उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अवॉइड एंड सर्वाइव एंड अटैक बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। अगर डॉक्टर ने ठीक से साफ नहीं किया या आपने खाली दवाई लगा ली, डिटॉल से साफ नहीं किया, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मरेंगे नहीं, अंदर चले जाएंगे ब्लड में। फिर क्या होगा, वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू जाएंगे और आपको अटैक करेंगे आपके इम्यूनिटी के ऊपर, ठीक है?
इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है, इसीलिए बोलते हैं ना इसकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, इसको इतनी जोर से चोट लगी थी फटाफट ठीक हो गया, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है करते हैं हमें बचाने के लिए। ओके, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट। अब ये गंदे ऑर्गेनिजम्स अगर आपकी बॉडी में घुस गए तो उनकी पार्टी शुरू, और आपको क्या होता है, पहले नोज में पानी आ रहा है, फिर गले में दर्द हो रहा है, फिर अगले दिन फीवर आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, फिर भूख नहीं लग रही है ना, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ 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 कुछ। तो वो क्योंकि वो धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी को ओवर पावर कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर, एंड इसीलिए हमें बुखार के बाद बहुत वीक इसीलिए फील होता है बेटा। ओके, contagious diseases. What are contagious diseases? Infectious diseases caused by pathogen. क्या था pathogen? क्या लिखा था आपने अभी? कौन बताएगा मुझे? शाबाश अनिका, very good. I'm so proud of you. Rovel, you are there? Yes. What are pathogens, beta? मैम germs. Very good. I'm so proud of you. So, infectious diseases caused by germs, bacteria, जो जर्म वाले बैक्टीरियाज हैं, जर्म वाले वायरसेस हैं, वो बहुत जल्दी फैलते हैं, क्योंकि उन्हें उनका एम होता है कि एक अगर हम बॉडी में घुस जाएं तो हम एटलीस्ट अच्छे टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन, और इसीलिए वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फटाफट फैलते हैं। कंटेजियस, बहुत तेजी से फैलना। ठीक है, you have shaken hands with someone, you will get it. If Pavani is not touched anyone, लेकिन she is sitting in the zone जहाँ पे एक बच्चा लगातार खांसे जा रहा है क्लास में, so she might have the infection. This is highly contagious. कोविड का टाइम याद है सबको? Do you remember the COVID times? Everyone, do you remember? Okay, Pratham, tell me what happened in COVID. क्या restrictions लगाए थे गवर्नमेंट ने? कहाँ गए बेटा? Where have you gone? मैम हम बीमार हो जाते हैं। हाँ बेटा, तो गवर्नमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शंस लगाए थे, क्या प्रिकॉशंस थे? सर क्या बोला? घर से बाहर नहीं निकलना। 2 फीट के टोपी बनाए रखी। कितने घंटे के लिए बोला था, कुछ याद है? लॉकडाउन कितने घंटे का लगा था? सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात। मैम महीनों को। महीनों का नहीं, एक बार में जैसे कुछ घंटे का लगता था ना, उसके बाद हम वेजिटेबल्स लेने के निकलते थे। ओके, वेरी नाइस। प्रथम ने जो बताया ठीक। पृथ्वी, आई एम वेरी हैप्पी यू पार्टिसिपेटेड। यस, एवलिन, yes. Evelyn, tell me, what do you remember of COVID? मिस, हम हाथ मिल नहीं सकते थे और एक इंसान के पास नहीं जा सकते थे। Okay, what about anything else in specific, like? Yes. Okay, never mind. You can. ठीक है बेटा. Okay, you could not shake hands. Absolutely right. Yes, Rovel. Every time I unmute you, you vanish somewhere. Yes, beta. मैम we should wear mask. Absolutely right. Very good. What else? मैम हमें इंसान के पास और यानी पर्सन के पास हमें ज्यादा पास नहीं रहना था। Very good. Absolutely right. क्लासेस होती थी। ऑनलाइन क्लासेस होती थी, इसलिए इसका मतलब क्या है कि वो कोविड बहुत जल्दी फैल रहा था, है ना? ओके, वेरी नाइस। सो इट वाज हाईली कंटेजियस। वेरी गुड रॉबल। सो इट वाज हाईली कंटेजियस। कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए तो भी वी कुड बी अनवेल। शुभी, हाउ कम यू आर हियर डियर? यहाँ कैसे आया शुभी? मैम आई हैव रीजॉइंड द क्लासेस। बेटा, पर आपका हुआ नहीं, आपका तो बहुत अच्छा था प्रिपरेशन। मैम 2-3 नंबर से रह गया था। कोई बात नहीं, चलो अभी तो हो ही जाएगा। ठीक है, अभी एकदम स्ट्रिक्टली सीरियसली फॉलो करना। हाँ, वेलकम टू द क्लास बेटा। सो नाइस टू सी यू। इस बार तो पक्का पास हो जाओगे आप। ओके, नाउ इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस। कंटेजियस डिजीजेस आर जो बहुत जल्दी फैलते हैं। अभी हमने कोविड का एग्जाम्पल देखा। फ्लू जो हवा में चलता है जब सीजन चेंज होता है। कोल्ड, जुकाम, बुखार, गला खराब, ऑल दीज आर कंटेजियस डिजीजेस। ये कैसे फैल सकते हैं? डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से। अगर कृति ने किसी के साथ डायरेक्ट शेक हैंड किया और उसको जुकाम है
और कृति हैंड वॉश करना भी भूल गई, हाँ, सो देन इट कैन हैपन। एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज, अगर अनिरुद्ध ने किसी का इनडायरेक्ट कोई रबर यूज किया रब करने के लिए, उसको मालूम नहीं है, वो बच्चे को जुकाम है, तो इनडायरेक्ट उसका रबर टच करने से भी जुकाम हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. Direct, shaking hands, sneezing, kissing, all this. Examples are chickenpox, mumps are here, like you have glands here, common cold, dermatitis, eczema, ये सब स्किन के ऊपर हो जाते हैं, measles, rashes जो होते हैं. What are pathogens? देखो अभी तक हमने पढ़ा they are germs, harmful germs. क्या क्या करते हैं pathogens? Infectious diseases are caused by pathogenic microorganisms. Okay? क्या करते हैं? हमारी बॉडी में इन्वेड करते हैं, घुस जाते हैं जबरदस्ती, हमको नहीं चाहिए फिर भी घुस जाते हैं, एंड मेक द होस्ट बैडली इल. क्योंकि वो एक बार हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, उसके बाद उनकी पार्टी शुरू होती है, हमारा बैंड बजता है, क्योंकि वो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स सब कुछ अपनी टेक एवरीथिंग. ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजन कॉज डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस. जर्म्स जैसे है वैसे ही इन्फेक्शन होंगी. Okay, now viruses. Viruses are extremely small and consist of a DNA. एक DNA structured होता है, प्रोटीन की कवर्ड लेयर होती है, और एक उनको बस एक जिंदा सेल चाहिए होता है, बस उसके बाद उनके बल्ले बल्ले, है ना? They require a living cell as host to carry out their vital function. बस उसके बाद उनका vital function start हो जाता है. They are smaller than bacteria. बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं साइज में, एंड हर एक को इन्फेक्ट कर सकते हैं. ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, चाहे वो आपका कोई पेड़ ही क्यों ना हो. आपने देखा है माली भैया पेड़ों के ऊपर भी स्प्रे करते हैं, है ना? उनको भी दवाइयां डालते हैं, हल्दी लगाते हैं, कुछ कुछ लगाते हैं, फॉर दिस रीजन. स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन इन्फेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Diseases caused influenza, common cold, measles, mumps, smallpox, yellow fever, hepatitis, AIDS, polio, and dengue. These are common examples. आपका COVID-19 बहुत बड़ा example था of, उसको 19 इसीलिए बोला जाता था because of the viruses, because of the virus. These are some of the example. इनको learn नहीं करना है, सिर्फ दिखाने के लिए बोलता है, समझने के लिए दिखाया मैंने. Bacteria. Now, bacteria are small microorganisms that cause infectious इन्फेक्शंस. इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जलन हो जाती है उससे, क्योंकि वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं. अब मुझे बताओ एक अच्छी बैक्टीरिया का नाम, क्योंकि हम गुड और बैड दोनों की बात कर रहे हैं ना. टेल मी अबाउट अ गुड बैक्टीरिया जिसको आप अच्छे से खुश होके खाते हो और वो आपकी बोन्स को बहुत हेल्दी रखता है. गुड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, एंड टेल मी द नेम. अनिरुद्ध? यस बेटा. मैम मिल्क एंड दही में बैक्टीरियाज होते हैं. वेरी गुड. दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है? एनी आइडिया? नेम? वेरी गुड अनिरुद्ध. नहीं कोई बात नहीं, बट यस कोई बात नहीं, कोई, यू हैव मेंशन द राइट वन. ओके, मुझे पता है शुभी को और हैंड कौन रेज करेगा आपको पता है बेटा. वेट वेट. यस, एनीवन? सिद्धार्थ हैंड रेज करो. प्रथम, तौशिक हैज रेज्ड हैंड. आरुष कैन यू ट्राई? कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा? Who will mention? आरुष? यस, बोलो फटाफट, बोलो बोलो. रोज दही खाते हो ना अच्छे से, लस्सी भी पीते हो ना, तो बैक्टीरिया का नाम बताओ, नहीं तो पेट के अंदर बैक्टीरिया गुड़गुड़ करेगा, गुस्सा हो जाएगा फिर कि मेरा नाम भी नहीं मालूम आरुष को, रोज मजे से खाता है मेरे को. जल्दी, एनीवन? ओके, Ravel knows it. Wait, Ravel, you've answered बेटा. Let me check out on children who are sitting very quietly. जो बच्चे बिल्कुल यहाँ पे शांति से बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं ना, वो थोड़े हिल जाएं, थोड़े हिल जाओ. शेक योर सेल्फ, शेक योर हेड, शेक योर ears or anything which keeps you awake. Priyanshi and Trisha, are you also twins? आप भी twins हो क्या? Oh my God, is this a twin class happening here? You are twins? Wow. We have 3 twins in the class. एक दिन हम twin classes करेंगे, है ना? चलो, nice. Okay, twins. So you have 2 brains. चलो बताओ. 2 चल रहे हैं अभी दोनों के. चलो जल्दी से बताओ क्या नाम होता है उस बैक्टीरिया का. कर्ड खाते हो ना दोनों?
खाते हो? जल्दी से बताओ बैक्टीरिया का नाम। चलो छोड़ो, अभी आपको नहीं मालूम, लिख लेना। लेकिन एनीवन? मान्या, कुणाल, यू रिमेम्बर? अच्छा रुको, यू रिमेम्बर? नो कुणाल, मैं बैटमैन बना के उल्टा लटका दूंगी। जल्दी लिखो, जैसे आंसर आएगा फटाफट लिखना। Who will tell me? जल्दी। Yes, Nikom, another twins. Yes. Yes. Unmute करो बेटा, unmute. Yes. मैम कर्ड बैक्टीरिया, कर्ड बैक्टीरिया। No, it is not called curd bacteria. उसका कुछ नाम होता है। अश्वत्थ। Yes, अश्वत्थ। मैम लैक्टोबैसिलियस। Yes, it is lactobacillus bacteria. A big round of applause for Ashwath and all the children who are raising hands. I am very proud of you. Very good. Lactobacillus. Kunal, लिखो जल्दी से। Next class में पूछूंगी मैं फिर से। Okay. Some examples of diseases caused by bacteria. What are the diseases caused? Tuberculosis, salmonella, all these, typhoid fever, gande bad, this thing. Okay. ये मैं okay, this I will, yeah, इसको छोड़ो, इसको मैं आपको बाद में। ये देखो, कुछ चीजें मैं अभी सब कुछ आज नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आपकी पहली क्लास है ना। हम रिवीजन में भी कुछ चीजें करेंगे, ठीक है? नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सब सिर के ऊपर से निकल जाएगा अगर मैम सारा आज अनलोड कर देगी तो। ये मत सोचना कि मैम ने ये तो पढ़ाया ही नहीं, ठीक है? ओके। पैरासाइट्स है ना बॉडी। अच्छा, कितने बच्चों ने ऐसे देखा है? अगर सोचो प्रथम और पृथ्वी ऐसे सीधा बैठे हुए हैं ना, और अगर पृथ्वी प्रथम के ऊपर लटका जा रहा है बिल्कुल ऐसे करके, ऐसा होता है ना, कोई दोस्त ऐसे सीधा बैठ ही नहीं सकता है ना, ऐसे हमारे ऊपर ही लीन करे जा रहा है, फिर हम बोलते हैं उधर है, बार बार ऐसे कर रहा है ना, बोलते हैं ना। वैसे ही गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरी तरह से होस्ट की बॉडी के ऊपर लीन डिपेंडेंट हो जाते हैं। And what do they? These are known as parasites. Parasite is an organism that live in on the host body, taking nutrients to survive while harming the host body. हमारे ही nutrients लेता है और हमको ही बीमार कर जाता है, हमको भी बैड बुरी हालत कर देता है हमारी, ठीक है? हमारी बॉडी को हार्म भी करता है और हमारे न्यूट्रिएंट्स भी ले लेता है। ये है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में आते हैं गंदे प्रोटोजोआस, वर्म्स। देखा है पेट में जब कीड़े होते हैं तो क्या होता है? पेट में दर्द भी होता है, बुखार भी होता है, भूख भी नहीं लग रही होती है ना, फिर मम्मी जल्दी से कीड़ों वाली दवा देती है, 2 दिन में कीड़े ठीक होते हैं फिर, है ना। स्किन ड्वेलर्स, अगर किसी को स्किन में खुजली हो गया, सो इट इज, जितना आप स्क्रैच करते जा रहे हो वो फैलती जा रही है पूरी स्किन में, ऑल दैट। ओके, सो दीज आर पैरासाइट्स। Parasitic diseases are malaria, sleeping sickness, scabies. They can be very dangerous. अगर हमने इसको ट्रीट नहीं कराया तो ये बढ़ के बैंड बजा देता है। प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये 1 सेल के होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना बेटा, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू ही लिया है इसका पिक्चर। दीज ऐसे केमिकल डालने के बाद ऐसे दिखते हैं एंड दिस इज देयर फॉर्म। नाउ प्रोटोजोआस क्या करते हैं कि वो दे आर फ्री लिविंग, वो अलग भी पड़े हुए हैं तो वो जिंदा है। ओके, दे आर फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक इन नेचर। जब किसी की बॉडी में घुसते हैं तो फिर वो उसकी बॉडी को पूरा पार्टी टाइम करके उसको बीमार करते हैं। Many protozoa cause diseases in animals and humans. Some are plasmodium species which cause malaria. आपने मलेरिया का देखा होगा बेटा, शुरू में इनिशियली इफ मलेरिया इज ट्रीटेड तो ठीक हो जाता है, अगर इमिडिएटली आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको पता है कि मलेरिया था व्हाटएवर। बट अगर आपने उसको बढ़ा लिया कुछ अपने आप खुद की दवाइयां खा के और बहुत बैड फॉर्म में, तो दीज दे मेक यू, जैसे इन्होंने बोला ना, दे डिपेंड ऑन द बॉडी एंड दे हार्म द बॉडी लाइक एनीथिंग। कितने लोगों को देखा है मलेरिया से डेथ भी हो जाती है, पता है? व्हेन इट बिकम्स वर्स इट बिकम्स बैड, छोड़ते नहीं है फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? डिवास्टेटिंग टू पीपल्स वर्ल्ड वाइड। नाउ कम्स फंजाई। ये देखो, मशरूम इज अ फॉर्म ऑफ फंजाई, यू ऑल नो इट राइट, है ना? Mushroom is this thing. Now fungi are microorganisms such as yeast, molds, bad fungi. गंदे टॉक्सिक हो सकते हैं। ओके, नाउ आपने सुने मशरूम, ऐसे पेपर में कभी आया हो कि मशरूम खाने से इतने लोग मर गए, वो जहरीले मशरूम थे, ऐसे पढ़ा है ना? ये क्यों होता है बेटा? यस, तोश्विक कैन यू टेल मी ऐसा होता क्यों है? एनी आइडिया? ऐसे गैस मारो। अच्छा बताओ मुझे, क्या बताना है?
मैम क्योंकि उसमें मैम फंगी होता है, और मैम एक फंगी मैम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, खराब वाला बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी ओके बॉडी को हार्म करता है। ओके, ये तभी होगा अगर तोशविक ने एक मशरूम निकाला, ठीक है, उसने देखा कि कहीं तो यहाँ पे मशरूम्स आ रहे हैं, चलो इन्हें ग्रो करने दो। अगर तोशविक के गार्डन में अच्छी जगह पर मशरूम्स आ रहे हैं तो वो फीड कर रहे हैं अपने आप को, जो वहां के हेल्दी सॉइल है उसके ऊपर फीड कर रहे हैं, वो तोशविक खा सकता है। लेकिन अगर कोई अनहेल्दी पॉइजनस पौधा है या कोई जगह है जहां गंदगी है और वहां पर मशरूम्स निकल गए और उसको किसी ने खा लिया, क्योंकि मशरूम अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो अपने आसपास की सराउंडिंग से अपना खाना इकट्ठा करता है, तो मशरूम जहां पर लगा है वैसे ही चीजें इकट्ठी करके बन जाता है। इसीलिए मशरूम को हमेशा बोला जाता है कि देख कर खाओ, आप कहाँ से खरीद के खा रहे हो, अच्छी जगह से खरीद के खाओ, क्योंकि दे बिकम वेरी डेंजरस। दिस इज अ फॉर्म ऑफ फंजाई। ओके, बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और गुड का फर्क है बेटा ये, ठीक है। हेल्दी, हम हेल्दी मशरूम्स खाते हैं तो हमें बहुत प्रोटीन्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर वहीं पर हम बैड मशरूम्स खा लें तो हम मर भी सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। They can, okay, bad fungi including include toxic mushrooms, pathogenic yeast। आपने देखा है चपाती, अगर मम्मा चपाती रख के भूल जाए और फिर उसको खोलती है तो वो ग्रीन ग्रीन ऐसे होता है ना चपातीज में, पराठों में, ब्रेड में, that is that only। okay, molds that cause diseases। अगर आपने वो खा लिया बाय चांस, किसी की इम्यूनिटी ठीक है तो वो, बट अगर हाँ वो है तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा, लूज मोशंस कुछ हो जाएगा। एलर्जिक रिएक्शंस, फूड स्पॉइलेज। They can cause diseases such as fungal meningitis, ringworm, athlete foot rush। ये सारे स्किन पर भी होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एवरीथिंग। Ways of how the diseases get transferred। अब आपकी बॉडी में कैसे अंदर घुस रहे हैं, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको रट लो बेटा, ये स्लाइड पर्पसली इसीलिए डाली थी कि सैल्मोनेला जो वायरस होता है उससे हमें फूड पॉइजनिंग होता है। जब आप बाहर का खाना खाते हो तो सैल्मोनेला वायरस आपकी बॉडी में घुसता है, बैक्टीरिया, सॉरी, सैल्मोनेला बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुसता है और आपके पेट को सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम को है ट्रैप करके फूड पॉइजनिंग करता है। ओके, कहाँ कहाँ से घुसता है पानी? अगर सिद्धार्थ ने बाहर का गंदा पानी पी लिया, उसको मालूम नहीं था, तो पानी से गया। वाई? बिकॉज 70% ऑफ ब्लड इज वाटर, है ना। तो पानी से सोचो पूरे ब्लड में बड़े मजे से मिक्स हो गया सब कुछ। एयरबॉर्न, अगर लाट्रुथेला ने बाय चांस कोई चीज इनहेल किया, वो गंदा स्मेल आ रहा था उधर, उसने इनहेल कर लिया कुछ माइक्रो, इफ यू आर, इट इज अ बैड ओडर, दैट मीन्स देयर इज समथिंग फिशी, राइट। वो ज्यादा इनहेल करके इट गोज इन योर चेस्ट, इट गोज ट्रैकिया से अंदर एंड देन इट अटैक्स योर लंग्स। अगर तो लाट्रुथेला का इम्यूनिटी अच्छा है तो ठीक है, अगर खराब है तो क्या होगा? चेस्ट में दर्द शुरू हो जाएगा। ऑल दिस विल हैपन। यस, फिजिकल कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर गरिमा ने किसी को शेक हैंड्स किया और उसको कोविड-19 था तो, और उसने मास्क भी नहीं लगा रखा, सो दैट्स अ डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, यू आर शेकिंग हैंड विद दैट पर्सन। अब क्या होगा? वो पूरा डिपेंड करता है गरिमा की इम्यूनिटी के ऊपर। ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, बेटा हम कितनी बार जब उसमें जाते हैं, हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ना कि सिरिंजेस, डॉक्टर साथ में, जब मम्मा साथ में जाती है तो देखते हैं ना, डॉक्टर ने सिरिंज सामने से निकाली पैकेट में से, फ्रेश सिरिंज के साथ आपको लिया, इंजेक्शन लगाया, ऑल दैट, है ना। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से इन्फेक्शंस फैल सकते हैं, दैट्स व्हाई। वेक्टर बॉर्न इज कीड़े के काटने से। फूड बॉर्न, अगर माने ने बाहर का खाना खा लिया जिद करके, मोमोज गंदे वाले जो सड़क रोड साइड वेंडर के थे वो खा लिए, तो क्या होगा? फूड से गया, है ना। सो ये सारी चीजें जहां से जर्म्स वेट करते हैं कि हम वो हमारी बॉडी में घुसे और अटैक करें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन बी कॉलरा, टाइफॉइड, टीबी। फंगल इन्फेक्शन, ये रिंग वर्म है। रिंग वर्म कैसे चलता है? वर्म का मूव करने का स्टाइल ही है, तो अगर उसने आपकी स्किन के ऊपर अटैक किया है तो वो स्किन में भी गोल गोल घूमेगा, तो डॉक्टर को देख के पता चल जाता है कि ओहो ये तो रिंग वर्म अटैक है, ये इस वाले एंटीबायोटिक से मरेगा, है ना। एथलीट फुट, ये जो बॉयज सॉक्स नहीं चेंज करते, है ना, कितने बॉयज गंदे स्टिंकी सॉक्स पहनते हैं? साहिल, आई होप यू डोंट वेयर स्टिंकी सॉक्स। बदबू वाले सॉक्स तो नहीं पहनते बॉयज? आई होप यू मेंटेन हाइजीन। ऐसे तो नहीं अपने सॉक्स उतारे म्यूजिक रूम में और सब बेहोश हो गए? ऐसे वाले सॉक्स तो कोई नहीं पहनता ना क्लास में। तेजस, साफ सुथरे सॉक्स। हाँ, रॉबिन, व्हाट अबाउट यू?
Good to go. Okay. ठीक है. So these अगर hygiene maintain नहीं है, it is dirty and sweat में you're getting rashes and the germs are biting. Fungal infections, viral, polio, chickenpox, hepatitis, all these infectious ones. Microbes enter your body through different sites. Respiratory system. सांस कहाँ से लेते हैं जरा दिखाना. Touch your that portion. Touch that part. Yes, you breathe from here. तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? Lungs में जाएंगे. यूरोजेनिटल ट्रैक होता है बेटा, प्राइवेट पार्ट्स. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस किधर बनता है? ज्यादा गंदा खाना खा लो बाहर का तो गैस किधर बनता है? स्टमक. सो दैट्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम. जहां गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हियर, ओवर हियर. ओके. स्किन इन्फेक्शन. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, है ना. पूरी बॉडी को स्किन नहीं तो कवर किया है, तो स्किन पर भी अटैक होता है. ओके. दिस इज हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक. नाउ इंसेक्ट बाइट बेटा, हम लोग इतना सीरियसली वी थिंक कि इतना छोटा सा कीड़ा है क्या ही करेगा, बट यू नो व्हाट, दीज इंसेक्ट्स, देयर वाज, आई हैव सीन इट विद माय आईज, देयर वाज अ ब्लू लिटिल, छोटा सा एक ब्लू कलर का, नहीं येलो कलर का कीड़ा आके एक अंकल को काटा, एंड दैट अंकल वाज विद इन फ्यू आवर्स ही वाज डेड. कैन यू इमेजिन, एक छोटे से कीड़े ने ऐसे इन्फेक्ट किया उनको कि उनका पूरे ऑर्गन फेलियर हो गया उनका. सो द इंसेक्ट्स, वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द इंसेक्ट्स. Okay, insects such as fleas, mosquitoes can carry pathogens that can get passed and they make contact with humans. You know what, there was a time, जैसे अभी कोविड आया था ना बेटा, वैसे ही आया था ब्यूबोनिक प्लेग. अगर आप अपने दादाजी से या किसी से पूछोगे ना, दादाजी के दादाजी, सो उस टाइम पर लोग विलेजेस में रहते थे ना, और विलेजेस में जैसे अभी यू आर इन योर हाउस, यू आर अ न्यूक्लियर फैमिली, योर पेरेंट्स आर देयर, यू आर देयर, है ना. पहले लोग गांव में इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे. सो देयर वाज अ दिस थिंग, फ्ली, जिसने एक चूहे को काटा, और उस चूहे से अगर एक इंसान को वो बीमारी लगा तो अगले दिन सुबह तक पूरे गांव मर जाता था. पता है, इतना गंदा बीमारी था वो. होल विलेजेस वर फिनिशिंग, सब लोग ऐसे मर रहे थे बिल्कुल. दिस वाज ब्यूबोनिक प्लेग, जिससे बचने के लिए लोगों ने, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड इट वाज सो डेंजरस. सो दिस इज व्हाट इंसेक्ट बाइट्स कैन डू. ओके, इसीलिए मम्मा जब बोलती है ना ओडोमोस लगा के जाओ बाहर, तो जरूर जाना. इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सम पैथोजेंस कैन सर्वाइव फॉर अ व्हाइल आउटसाइड द होस्ट. कुछ जर्म्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के बाहर भी सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे हमारा कोविड-19 का जो हमारा लॉकडाउन लगा था ना बेटा, वो पता है कितने कितने आवर्स का था वो? एनीवन रिमेम्बर्स कितने आवर्स का लॉकडाउन होता था? याद है, जब पुलिस वाले अंकल बोलते थे अभी डैश डैश आवर्स के लिए कोई बाहर नहीं निकलेगा. व्हाट वाज द आवर्स ड्यूरेशन इन कोविड? शुभी को मालूम है? चलो शुभी बताओ, शाबाश. मैम 12. वेरी गुड, 12 आवर्स. वाई सो? बिकॉज जो कोविड-19 का वायरस था वो 12 आवर्स तक सरफेस के ऊपर जिंदा रह सकता था. अगर 12 आवर्स के बाद हम निकलेंगे तो वो वायरस मर चुका होगा, फिर हम फ्रेश वायरस, एवरीथिंग इज क्लीन, किसी ने टच किया है तो बाहर हैंड वॉश करके हम फिर भी बच सकते हैं. लेकिन वायरस अगर वहां पे 12 घंटे तक जिंदा है और हमने जाके लिफ्ट का बटन दबा दिया जिसमें एक वायरस था, या फ्रूट्स भैया से, वो वेंडर से फ्रूट्स लिए, उसको स्मेल कर लिया तो हमारी नोज के थ्रू चला गया, है ना. सो दिस वाज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हमें वायरसेस या अदर माइक्रो और बैड माइक्रोब्स इन्फेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा, टिटनेस, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस. नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो डिजीजेस जो हमें छूने से फैलते नहीं है. डेफिशिएंसी डिजीजेस, किसी की क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैम बोलती है कि अरे ये बेटा बहुत वीक है, इससे दूर रहो, इसको परेशान मत करना, ऐसे बोलती है? दूर रहो नहीं बोलती, बोलती है परेशान नहीं करना. यस यश, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो बटन, या बोलो. यस यश, your Wi-Fi has gone after unmuting. Anyone else? Anyone else? Anirudh, Diva? No one in your class? Yes, beta. Ma'am, in first grade, there was a kid named Kian. He was weak, so ma'am would always say, don't disturb him. Yes. So, did it happen that if you touched him, you would get the infection? Was it so? No, ma'am. Means Yes. it had little less nutrients.
यस, एब्सोल्युटली राइट। तो अगर किसी को डेफिशिएंसी डिजीज है, जैसे अगर अनिरुद्ध को कैरेट खाने की आदत नहीं है, तो क्या हुआ, अनिरुद्ध को चश्मा लगाना पड़ गया। तो ऐसा है क्या कि अगर उसको तौशिक टच करेगा तो चश्मा तौशिक को भी लगाना पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं ना। सो दिस इज डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी नहीं, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ बेटा, बाय चांस मैं यहाँ पे विटामिन ए का एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। अनिरुद्ध का ऐसे किसी और रीजन से भी हो सकता है। आई एम सेइंग कि डेफिशिएंसी, अगर हमने हेल्दी फूड नहीं खाया है, किसी चीज की डेफिशिएंसी है, बी कॉम्प्लेक्स की है, कुछ भी है, तो वो टच करने से नहीं फैलेगा। डीजेनरेटिव डिजीजेस, आपने किसी को देखा है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे किसी को देखा है, वो ऐसे स्लोली स्लोली चलते हैं और उनके लेग्स भी ऐसे होते हैं, देखा है किसी को अपनी फैमिली में, देखा है? एनीवन? कृति? Rovel? No one? Yes, Rovel has seen. Yes, tell us about them. मैम मेरे दादू मैम, माय ग्रैंडफादर मैम थोड़ा थोड़ा स्लो चलते हैं मैम, उनको थोड़ी टांगों में प्रॉब्लम है। तो अगर आप उनके फीट टच करते हो? मैम मालिश करता हूँ। अरे वाह, तो आप मालिश करने से आपको तो इन्फेक्शन नहीं होता ना बेटा? नो मैम। Very good, absolutely right. You are a very good boy, Rovel. That's a very good thing you do. Pamper him more. Very good. I'm so proud of you. Okay, so this is degenerative disease. क्योंकि रोवेल के दादाजी बुढ़े हो गए हैं, तो उनकी बोन्स थोड़ी सी सॉफ्ट होके टिल्ट हो गई, है ना। सो वो टच करने से इन्फेक्शन नहीं होगा। नॉन कम्युनिकेबल अगेन। ओके। एलर्जिक डिजीजेस, अगर राघव को पीनट्स खाने से एलर्जी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं राहुल को टच करूंगी और मुझे भी पीनट एलर्जी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। किसी बच्चे को खाने से एलर्जी है यहाँ पर? कुछ खा के उल्टियां होती है किसी को? एनीवन? नो वन? लेट मी सी। वेरी नाइस। अगर किसी को कोई एलर्जी नहीं है, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे आई हैव एलर्जी फ्रॉम एग्स, इफ आई ईट एग्स I start throwing up, I vomit. So allergic diseases are also, it is not that if Manya touches me, so she will also get egg allergy. No, it is all your internal, it's the way body is responding. Okay, now please click this, इसको click करो। एग्जाम में कैसे आएगा? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, उससे लाइक पुअर विजन हो जाता है। ओके, डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन बी बेरी बेरी बोलते हैं, जिसमें मसल्स वीक हो जाती हैं। विटामिन सी स्कर्वी, जिसमें ब्लीडिंग, गम्स ब्लीड करने लगते हैं। विटामिन डी से होते हैं रैकेट, जिससे बोन सॉफ्ट हो जाती है। अगर आप धूप में नहीं घूमोगे ज्यादा, जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल लेकर इंडोर रहते हैं, तो उनकी भी मसल सॉफ्ट हो सकती है। ओके, सो धूप में थोड़ी देर जाना चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना, मम्मा धूप में जाओ, धूप में जाके खेलो, विच इज फॉर दिस रीजन। कैल्शियम, बोन्स एंड टूथ डिके, बोलते हैं मम्मा दूध पियो तो स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, है ना। सो वीक बोन्स, टूथ डिके। आयोडीन, गोइटर, ये पहले ही होता था बेटा, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज सब कुछ ले गए थे, तो उस टाइम पर खाना भी नहीं होता था। तो खैर आयोडीन तो बहुत ही ज्यादा हर खाने में इतनी इजीली नहीं मिलता। सो सब जो उस टाइम पे जो बच्चे थे, उनको गले में स्वेलिंग हो जाता था, इतना बड़ा हो जाता था, बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, एंड दैट वाज नोन एज गोइटर। सो गवर्नमेंट डिड अ वेरी स्मार्ट थिंग। उन्होंने क्या किया, सॉल्ट में जो नमक हम खाएंगे, वो चाहे कोई गरीब आदमी भी हो, वो नमक तो खाएगा ही, है ना। तो नमक में ही आयोडीन मिला लिया, इसलिए अभी ये प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में। आपका सेकेंड होमवर्क है, यू विल चेक द पैकेट ऑफ नमक एंड टेल मी your packet which mama is using in your kitchen, and you will tell me what is the amount of salt, the iodine in your salt. Iron anemia, खून की कमी, मम्मा बोलते, डॉक्टर बोलते हैं मम्मा को खून की कमी हो गई है आपके अंदर, है ना। क्यों? क्योंकि सारा खून तो हम ही पी जाते हैं, चिल्ला चिल्ला के, लड़ लड़ के, है ना, इसलिए। तो दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ओके, इसको भी क्लिक कर लो। नाउ दिस इज एन इजी वन। नाइट ब्लाइंडनेस आईज में होता है, वेरी वेरी नर्वस सिस्टम में होता है। स्कर्वी गम्स में होता है, रैशेस स्किन पर हो जाते हैं। रिकेट्स बोन्स और टीथ में होता है। गोइटर नेक में होता है। कैंसर और हार्ट अटैक, क्या ये डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं? यस और नो? थम्स अप, थम्स डाउन, थम्स अप, थम्स डाउन।